In this, I will tell you how to identify a particular account, then its nature, and then apply the rule which I have told you, the 5 steps. Afterwards, in your fair notebook, you have to do all the questions in a particular format. But in your rough, for practice, I would suggest all of you follow those 5 steps. Those 5 steps which I am asking you to follow, those 5 steps are actually rough one. Those 5 steps are actually uh, your working process, thinking process. And in those 5 steps, you will have to carry out all the transactions and you have to follow the rules. Afterwards, you will have to write the transaction in a proper format, that is called journal, format of journal. Starting with what are books of original entry and what is this book, journal book. This is called the book of original entry because the transactions are first recorded in this book from the source documents. In the previous chapter, I told you about the source documents, different type of source documents. And in this chapter, we will talk about this book, which is known as book of original entry, where all those transactions which are already there in the source documents will be recorded in this. They will be transferred from that book, all those books, source documents, to this particular book. And in this, all the transactions will be recorded in chronological order. Note down, chronological order. Chronological order means date wise. जिस डेट की ट्रांजैक्शंस होंगी पहले, उस डेट की ट्रांजैक्शंस पहले रिकॉर्ड होंगी. All the transactions of Monday will be recorded in Monday, then Tuesday, then Wednesday. Even time wise also, जो ट्रांजैक्शन पहले होगी वो ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होगी. So they are all in sequence. Ketan, Ali and Gurbaz, turn the cameras on. Cameras should be on all the time. Don't touch your camera again and again. Gurbaz Singh. Otherwise, immediately I will remove you from the class and you will not be allowed any time. Gurbaz Singh. So I removed Gurbaz from the class. Now, how we will record? That you know, the rule is already told to you. The rule of debit and credit is already told to you. You have to identify the account, classify it, find out its nature, identify increase and decrease, apply the rule and write the amount. This is in 5 steps you have to do. But before that, let us talk about journal. What is journal? Again, I am telling, it is an original book of entry, recording transactions. First book. It is the first book of recording transactions. From where? From anywhere. From source document or from any rough book, rough notebook, from anywhere where the transactions are earlier recorded. These are recorded for the first time in a book. Now, if the business enterprise is small, one book of journal is sufficient. But if the business enterprise is very big and there are so many transactions taking place in a particular day, then journal will become very bulky, very big. And it will be very difficult to retrieve the transactions or informations in future. Therefore, journal is divided into sub-journal. Division of journal is there and sub-journal, and those books are known as
Special purpose subsidiary books. There are 8 special purpose subsidiary books. मतलब जर्नल को भी डिवाइड कर देते हैं. Journal is divided into sub journal into 8 books. उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इस चैप्टर में सिर्फ जर्नल के बारे में पढ़ेंगे. Those 8 books are cash book, purchase book, purchase return book, sales book, sales return book, bill receivable book, bill payable book, and journal proper. These are the 8 books which we will read in the next chapters to come. In this chapter, we will focus only on journal. What is the definition of journal? Journal is a book of original entry where all the transactions are first of all recorded in a duly format in following the double entry system in a chronological order, date wise. They have to be recorded following the rules of debit and credit. Everything is given in features. All these what I am telling you are the features of journal. Features of journal. It is a book of primary entry. Primary entry means basic first book. It is a daily accounting record book. They are recorded in chronological order, date-wise manner. They maintain the identity of each transaction. Rules of debit and credit are strictly followed. Double entry system is followed. हर एंट्री करने के बाद उसके नीचे नरेशन लिखा जाएगा. Narration means a brief explanation of each and every transaction. Brief explanation. जिसमें कि अकाउंटिंग लैंग्वेज के अलावा यह बताया जाता है कि इस ट्रांजैक्शन में आपने क्या किया है. What is done in a particular transaction. When journal is prepared, all the transactions can be found at a place. ये इसके advantages में आ जाएगा. Small things, right? Because they are in chronological order, so transactions can be very easily retrieved. Retrieved मतलब you can get them back. Entries are recorded date-wise properly, following the rule of debit and credit. So everything is in order according to the rules and regulations. Now I tell you very importantly the format of journal. आपका पेज चाहे कितना भी बड़ा हो, आपका जहां पर भी आप सॉल्व कर रहे हैं वो जगह कितनी भी हो, लेकिन रेशियो हर कॉलम का ऐसे ही होना चाहिए जैसे हम बना रहे हैं. अब हमारा बोर्ड तो बहुत बड़ा है, इसमें हम जो चीज बना रहे हैं वो आपको अगर पेज में बनानी है तो आपको हर कॉलम का रेशियो उतना ही रखना होगा जितना आपको हम दिखा रहे हैं. सपोज ये आपका पेज है, पेज ऑफ योर नोटबुक. अब वो चाहे इतना सा हो, you have to assume that each column will comprise of this space.
आपको बाद में 1 2 3 4 5 लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4 है, ये कॉलम नंबर 5 है। आप ये समझ लें, डेट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इनके जो ये कॉलम है, ये आपके एक स्केल जितने होने चाहिए, बस स्केल की जितनी विड्थ होती है, छोटे वाले स्केल की, नॉर्मल जो स्केल आता है उसकी विड्थ के बराबर होना चाहिए बस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ये जो है आपका, आप ये समझ लीजिए, पर्टिकुलर की जगह लगभग 80% होनी चाहिए, 80% पूरी जगह का, यहां से लेकर यहां तक जितनी भी जगह है उसका लगभग 75 to 80% आपका ये होना चाहिए। मतलब ये काफी जगह होनी चाहिए पर्टिकुलर्स के लिए। अब आप सब जने अपनी कॉपी में, पेज में मुझे ये फॉर्मेट बना के फिर ऐसा करके दिखाइए। पेज में आप इसे कैसे बनाएंगे अपनी कॉपी के पेज में? ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम। बुक में आप देख सकते हैं, बुक में भी आप देख सकते हैं, देखिए बना हुआ है। आपकी अगर कॉपी का पेज ऐसे है तो आप देख लीजिए किसकी जगह कितनी है इसमें। just go by the ratio of each column. Ratio of each column should be followed properly. Ratio of each column should be properly followed. ये नहीं है कि आप सारे कॉलम बराबर बना दें, ये ना हो कि आप जो है पर्टिकुलर का कॉलम इसका आधा ही कर दें, डेट का कॉलम बहुत बड़ा बना दें। आपको हमने पहले ही बताया था, जो कॉपी आप खरीदेंगे उसमें ये कॉलम नहीं होना चाहिए फर्स्ट वाला। अगर आपकी कॉपी में फर्स्ट कॉलम है तो वही कॉलम डेट का कॉलम बन जाएगा। अगर आपकी कॉपी में कॉलम पहले से बना हुआ है तो उस कॉलम को ही डेट का कॉलम बना देंगे, उसके बाद नहीं बनाएंगे डेट का कॉलम। वेरी फास्ट केतन, डू इट फास्ट, कीप द कैमरा ऑन। कनिष्का, पुनीत, joining after many days. Yes, Puneet, have you done? So, Yes, sir. so bring it close to the camera. हाँ, लेकिन जो आपका ये वाला कॉलम बनाया तुमने, लास्ट के 2 कॉलम बनाए, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 थोड़ा और कम करेंगे, और जो LF वाला कॉलम बनाएंगे, ये LF लेजर फॉलियो, जो लेजर फॉलियो वाला कॉलम बनाएंगे वो और पतला बनाएंगे। इट शुड बी वेरी Okay, sir. बिकॉज हमने उसमें कुछ भी लिखना नहीं है, उसमें सिर्फ लेजर का पेज नंबर आता है, वो हमने लिखना है इसमें, बिकॉज वो किस जगह पे लेजर वाली बुक में ये एंट्री है उसको शो करता है, तो वो हमने लिखना नहीं है, इसलिए आप उसको और पतला कर देंगे, छोटा। 4th और 5th कॉलम जो बनाएंगे आप, इनकी विड्थ बराबर होनी चाहिए। आप चेक कीजिए पुनीत, हमने देख लिया एक ज्यादा बड़ा है एक छोटा है। कॉलम नंबर 4 एक थोड़ा चौड़ा है और दूसरा उससे कम है, दोनों बराबर होने चाहिए। इसमें आपको अमाउंट लिखना है, मतलब इसमें आपको पैसे लिखने हैं, रुपीस। तो रुपीस आपको ज्यादा से ज्यादा लाख, 1 लाख में लिखने होंगे, यानी 5 डिजिट लिखनी है बस, उतनी जगह चाहिए उसके लिए। ये जो होता है ये पर्टिकुलर वाला, ये बड़ा बनाएंगे, अभी मैं बताऊंगा क्यों। ओके, और दिखाइए प्रियदर्शनी, दिखाओ, कनिष्का, जस्ट शो द फॉर्मेट। हाँ प्रियदर्शनी, लेजर फॉलियो देखो और बड़ा
छोटा वो करो, पतला, और पर्टिकुलर की जगह और बढ़ाइए। सुप्रीत ऑल्सो, ओके करेक्ट। कनिष्का नहीं, और पास में करो। नो, ये जो तुमने पहला जगह छोड़ दी है कॉलम जो आपकी कॉपी में बना हुआ है, मैंने कहा उसको बना लेंगे डेट कॉलम। तुमने डेट कॉलम स्टार्ट किया, वो जगह छोड़ के उसको बना लो डेट कॉलम। और जो ये लास्ट में तुमने लाइन खींच दी है लास्ट कॉलम में, ये लाइन आपको खींचनी नहीं है। जहां पेज खत्म हो रहा है वही समझ, सपोज कर लीजिए लाइन हो गई। ये वाली लाइन खींची है ना तुमने कनिष्का लास्ट में, वो खींचने की जरूरत नहीं है। पेज के एंड तक आप उसे ले जाइए, वही खत्म हो जाएगी लाइन वहां पर। दिखाओ पायल, हाँ करेक्ट। कनिष्का स्क्रीन स्क्रॉल करके देखो पायल का, पायल दिखाओ। दिखा, पायल दिख रही होंगी स्क्रीन पे। हाँ समझ गई। अब लास्ट वाली लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, और उधर आपको स्टार्टिंग से लेना है। मनमीत कैसे बनाया तुमने ये? राउंड कर, हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना है, वर्टिकल बनाना है, ऐसे ही स्ट्रेट ऊपर से नीचे। तुमने हॉरिजॉन्टल पेज में बनाया ऐसे, हाँ ऐसे वर्टिकल ऊपर से नीचे को। करेक्ट, खुश रावल करेक्ट। अली बी क्विक, प्रियांशु बनाओ जल्दी जल्दी, सार्थक गुड। जो फेयर कॉपी में जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप फेयर कॉपी में क्वेश्चन करेंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे हर पेज में, ठीक है? जैसे ये है आपका बुक में क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये क्वेश्चन है। उसके बाद डायरेक्ट ये सॉल्यूशन है, तो आपको क्वेश्चन नहीं उतारना फेयर कॉपी में, आप सीधे सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे लिखेंगे जर्नल ऑफ सिया राम एंड सन्स, उसके बाद ये फॉर्मेट बनाएंगे पूरा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। और ये जो पहली ट्रांजेक्शन है, यहां पर डेट के पास कॉलम में आप पहले ईयर लिखेंगे, फिर वहां से डेट लिखना शुरू कर देंगे। डेट वाइज लिखा जाएगा इसे। पहली ट्रांजेक्शन लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये कैसे लिखा है और क्यों लिखा है ये मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा। और उसके नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है? कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय सिया राम एंड सन्स एज कैपिटल। एक तरीके से ये पूरी ट्रांजैक्शन ही लिखी हुई है वहां पर। इट इज नोन एज नरेशन, इट इज नोन एज नरेशन। जिसको अकाउंट नहीं समझ में आती है वो इसको पढ़ के ये पता लगा सकता है कि क्या हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन क्या है। इट इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू कैन राइट देयर इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज डन इन द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो देखिए कुछ ट्रांजैक्शन मैंने आपको पहले बताई थी, उन्हीं को रिपीट करते हैं। परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000 रुपीज। ये ट्रांजैक्शन नोट कीजिए अपने पास। परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 5,000 रुपीज। नंबर 2 नोट कीजिए, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 2,000, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 2,000। एक और नोट कर लीजिए, परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश 5,000। 3 ट्रांजैक्शन हो गई आपकी।
तीनों की डेट डाल लीजिए, एक 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। ये आ गई पहली ट्रांजैक्शन, 2018 ईयर है, 2 अक्टूबर। अब आपको इसमें लिखना कैसे है वो हम बताएंगे। पहले जो पहली ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। आपको ये कैसे करना है, मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे, उन 5 स्टेप्स को मैं यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं नीचे। आप जब फेयर कॉपी में करेंगे तब तो ये फॉर्मेट बनाएंगे पूरा और सीधे इसमें करेंगे, लेकिन ये पूरा चैप्टर एवरीबडी विल फर्स्ट डू इन दिस मेथड। ये आपका एक तरीके से वर्किंग नोट है, थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपको अभी तो रफ कॉपी में करनी है, बाद में यू विल डू इट इन योर माइंड्स। वर्किंग नोट, इन अकाउंट्स नथिंग इज रफ, कोई भी रफ वर्क नहीं है इसमें हमारा। जो कुछ भी आप एज रफ करेंगे उसको वर्किंग नोट करके नीचे दिखाएंगे। यू विल मेक 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5। ये हो गए आपके 5 स्टेप्स ऑफ थिंकिंग, 1 2 3 4 5। पहले स्टेप में जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताई है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट हैं। अंजलि, कौन कौन से 2 अकाउंट है इस ट्रांजैक्शन में बताइए। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अनम्यूट करो। 5,000. हाँ बोलो फिर से। 5,000. अकाउंट कौन कौन से इसमें 2, अमाउंट नहीं, अकाउंट। मुस्कान बताओ। सर एक फर्नीचर है एंड सर सेकंड कैश है। सर फर्नीचर एसेट और कैश भी वेट एसेट है। वेट, स्टेप बाय स्टेप, एवरीबडी पे अटेंशन। इन्होंने बताया सर इसमें 2 अकाउंट है, एक कैश और एक फर्नीचर। ये जो 5 स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान रखें। आपको ये सारे सारे क्वेश्चंस की हर ट्रांजैक्शन के लिए ऐसे 5 स्टेप बनाने पड़ेंगे। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जर्नल, हाउ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कैसे अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं। अदरवाइज फिर आप रट्टा मारना शुरू कर देंगे, विच विल नॉट बी हेल्पफुल। इन्होंने बताया इसमें 2 अकाउंट है, एक कैश, इसके बाद उनका नेचर, उनका नेचर या उनका टाइप बताएंगे कि कैश क्या होता है और फर्नीचर क्या होता है। बताओ कनिष्का, कैश क्या होता है और फर्नीचर क्या होता है। कैश को सर कैश टेंजिबल. और फर्नीचर टेंजिबल. टेंजिबल, क्या टेंजिबल असेट, टेंजिबल
असेट, asset, मतलब दोनों ही असेट होती हैं, असेट होती है और फर्नीचर भी असेट होता है। कनिष्का जो है ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रही है, कनिष्का इज फॉलोइंग ट्रेडिशनल अप्रोच, जो हमने अभी पीछे बताया था आपको। हम आपसे कह रहे हैं आप कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच में 6 टाइप होते हैं, एक असेट, एक एक्सपेंस लॉसेस, एक कैपिटल, एक लायबिलिटी, एक इनकम और एक ड्राइंग। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये अमेरिकन अप्रोच से 6 टाइप ऑफ नेचर हो गए, मतलब ये नेचर हो गया। सी फॉर कैपिटल, क्लियर्ड, आपको याद करना है, क्लियर्ड, क्लियर, डी, क्लियर्ड। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस एंड लॉसेस, ए फॉर असेट्स, आर फॉर रेवेन्यू और इनकम, डी फॉर ड्राइंग। अब इसमें असेट, एक्सपेंस और ड्राइंग, ये तीनों बढ़ने पे डेबिट होते हैं। रूल है, असेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स बढ़ने पे डेबिट होते हैं, कम होने पे क्रेडिट होते हैं। वैसे ही कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ने पे क्रेडिट होते हैं और कम होने पे डेबिट होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं। अब आ जाइए रूल पे। असेट, कैश, इस ट्रांजैक्शन में क्योंकि हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। असेट का रूल अभी आपको मैंने बताया, जाने पे क्रेडिट और आने पे डेबिट, बढ़ने पे डेबिट, कम होने पे क्रेडिट। अमाउंट आपको पता ही है, 5,000 दोनों में अमाउंट है। ये 5 स्टेप हो गए, पांचों स्टेप को नोट कर लीजिए। पहला स्टेप, फाइंड आउट द अकाउंट्स इन द ट्रांजैक्शन। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई द नेचर। थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई इंक्रीज और डिक्रीज। फोर्थ स्टेप, अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिफ्थ स्टेप, राइट द अमाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में आपको यह पता चल गया कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, एवरीबॉडी ऑन द बोर्ड, जब आप इसको इसमें लिखेंगे जर्नल में, तो इसको कैसे लिखेंगे? दोनों में जो भी अकाउंट या 3 हो या 4 हो या 5 हो, पहले आप डेबिट वाला अकाउंट लिखेंगे और उसे लिखना शुरू करेंगे बिल्कुल कोने से, लाइन से मिला के। तो आप यहां से लिखेंगे, पहली एंट्री हो रही है ये, फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। यहां पर लिखेंगे बिल्कुल पास में, यहां पर जाके फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये इस फॉर्मेट में फिल करने का तरीका बता रहे हैं आपको। अपने मन से आप कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते कि फर्नीचर आपने यहां से लिखना शुरू कर दिया या इधर से लिखना शुरू कर दिया। आपको बिल्कुल कोने से स्टार्ट करना है, बिना लाइन जगह छोड़े, कोने से बिल्कुल फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट लिखना है बिल्कुल लेजर फोलियो के बगल में। दूसरा अकाउंट क्या है? क्रेडिट, कैश। उसमें क्रेडिट कहीं नहीं लिखना है, क्रेडिट की जगह लिखना है टू, और वो भी इतनी जगह छोड़ने के बाद। आपने जो भी अकाउंट डेबिट लिखा होगा उसमें आधी जगह छोड़ देंगे और यहां पर लिखेंगे टू। इन दोनों के आगे अमाउंट लिखेंगे 5,000 यहां पर, 5,000 कैश के आगे, 5,000 फर्नीचर के आगे।
ये आपकी पहली जो आपकी ट्रांजैक्शन थी उसकी जर्नल एंट्री है, और यहां पर फिर लिखेंगे ब्रैकेट में नरेशन। और फिर यहां पर पर्टिकुलर कॉलम में ऐसे डॉटेड लाइन बना देंगे, डॉटेड लाइन, वो भी सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में नरेशन के बाद। ये देखिए डॉटेड लाइन, इसमें भी नहीं बनाना है, 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 सिर्फ इसमें। ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन। इसको पढ़ेंगे कैसे? अगर आप मुझसे पूछेंगे सर फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो मैं कैसे बताऊंगा आपको? आई विल टेल यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यह है नंबर 1 मेथड। नंबर 2 आप शॉर्ट में भी बता सकते हैं, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश। ना तो मैंने बताया कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, ना तो मैंने बताया कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, बट इट इज अंडरस्टूड जिसके आगे टू लगा है वो अकाउंट क्रेडिट होगा, जिसके आगे टू लगेगा वो अकाउंट क्रेडिट होगा, और जिसको हम बिना टू के बोलेंगे वो ऑटोमेटिक डेबिट होगा। और पहले वही अकाउंट बोलना है जो डेबिट हुआ है। सो हम क्या बोलेंगे? 2 मेथड नोट कीजिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हैं फर्नीचर टू कैश। कभी भी आप ऐसे नहीं बताएंगे कैश अकाउंट क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कभी भी ऐसे नहीं बताएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करना है, क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करना है, उसकी जगह आप लिखेंगे टू। और ये देखिए इतनी जगह छोड़ के लिखेंगे, जब भी क्रेडिट वाली कोई एंट्री आएगी ये इतनी जगह छोड़ के लिखेंगे। अभी इसकी फोटो खींच के आपको भेजेंगे, अच्छी तरीके से अपनी फेयर कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। ये अभी बाद में करेंगे, पहले ये 5 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में आप सारी ट्रांजैक्शंस करके देखेंगे। जब भी हम आपसे कोई ट्रांजैक्शन पूछेंगे आप मुझे ये 5 स्टेप्स में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से सर उसमें अकाउंट है, कौन से नेचर को बिलोंग करते हैं, उनका टाइप क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऐसे अप्लाई हो रहा है उसमें, और ये अमाउंट है, और जनरल एंट्री ये है सर। आप अपनी बुक में देखिए लाइन से, अब मैं इन जनरल एंट्री को आप पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? बुक की तरफ देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहली इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो सॉल्व किया हुआ है इस पेज में देखिए सामने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इलस्ट्रेशन नंबर 1, चैप्टर नंबर 9 में, जनरल वाले चैप्टर में पहला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जनवरी 5 की एंट्री है, ये देखो सेम एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश। कैसे पढ़ना है इसे हम आपको वो बता रहे हैं। फाइनली जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे करेंगे, और लास्ट में उसका टोटल कर देंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, टोटल हमेशा सेम आएगा बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम। It is enough for today. What is the format of journal? I have explained you how many columns are there. Each column में क्या क्या आता है, कैसे आपको एक एंट्री को लिखना है, मैंने आपको लिखने का तरीका बताया इन द जर्नल। दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग। अगर किसी और मेथड को आप फॉलो करेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। इट इज टू बी फिल्ड इन अ पर्टिकुलर वे ओनली। और ये 5 स्टेप्स हर ट्रांजैक्शन से पहले आप रफ कॉपी में करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और हर क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजैक्शन है, सबके लिए आपको ऐसे करना होगा क्वेश्चन। Then only you will be able to understand this chapter and then the other chapters which are following this chapter.
I hope it is enough for today. Anybody want to ask anything? If there is something to ask, you ask in the next period because time is getting over. Join your classes regularly and keep your work updated. Thank you. God bless all of you.